This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and I will be preaching the message in English, and Pastor Persis Hanna of India will be translating into Hindi. और सभी को जय मसीह की आज की शाम आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं पास्टर जॉन विग्नेस मिनेसोटा से और मुझे ट्रांसलेट करेंगे पर्सिस से। The title of the message is, What Does It Mean to Be Born Again? What does it mean to be born again? और आज का वचन का शीर्षक मनादी के लिए हम लेते हैं, हम जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, और जिसमें इस प्रकार से हम वचन का शीर्षक को कहता है कि क्या मतलब है जब हम वहां पर पढ़ते हैं पुनः जन्म लेना, दोबारा जन्म लेना, इससे क्या समझते हैं। Have you ever had the opportunity to share Jesus with someone and you talked about being born again and they absolutely could not understand what you were saying? They say, what do you mean, born again? और क्या कभी आपको ऐसा मौका मिला है कि आप किसी व्यक्ति के साथ यीशु मसीह के बारे में बात कर सके, बांट सके और उसको बता सके कि क्या होता है जब एक पुनः जन्म लिया जाता है, और वो हो सकता है वो इस प्रकार से ना समझे कि आप क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है इसका दोबारा जन्म लेने से। Jesus had an encounter like that with Nicodemus in John chapter 3, verses 1 through 7. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came by night and said unto him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no man can do these miracles that you do, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And Nicodemus said unto him, How can a man be born when he's old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Marvel not that I said unto you, you must be born again. और ऐसी एक परिस्थिति हम देख सकते हैं, यीशु मसीह ने जब निकोदेमस से बात कर रहे थे तो ऐसी परिस्थिति को वहां पर देखा गया। आइए हम मन के लिए पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ेंगे। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। Nicodemus was a ruler of the Jews. He was a very educated man. He went to the best seminaries or colleges of his day. He was taught the Old Testament or the law of Moses. The Jews in his community would have said he was one of the greatest men of God of their day. They would have said that Nicodemus was a very moral man. और जो निकोदेमस था वो यहूदियों का एक सरदार था, जो बहुत ही पढ़ा लिखा एक व्यक्ति था, और वहां के कॉलेज और जो वो सेमिनारीज होती थी वहां से आया था। अच्छा, मूसा के जो नियम है, व्यवस्था के नियम है, पुराने नियम को अच्छे से जानने वाला एक व्यक्ति था। और जब वहां पर कहते हैं यहूदी और उसके जो उसमें बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति जब कहा जाता है तो बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति वो था। Yet the first thing Jesus said to Nicodemus was, Nicodemus, you need to be born again. Nicodemus could not understand this and said, how can a man be born when he's old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Now, isn't that what many people say to us when we talk to them about being born again? My question to you is, why couldn't Nicodemus understand what Jesus was saying? Why don't people understand what we're saying when we talk to them about being born again? I'm going to lay some groundwork to answer this question. At first, you will not understand what I'm saying, but when I get done sharing, you will clearly understand.
और पहली बार जब यीशु ने निकोदेमस को ये बात कही कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें पुनः जन्म लेना है, तो वो बात उसको समझ नहीं आई। और इसमें लिखा है चौथी आयत में कि किस तरह से एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो गया है वो दोबारा जन्म ले सकता है, या दोबारा से उसको माता के गर्भ में प्रवेश करना और जन्म लेना है। और जब हम किसी को बोलते हैं दोबारा जन्म लेना, तो क्या लोग उसे समझ पाते हैं? कई बार नहीं भी समझ पाते, कई बार दोबारा गलत समझते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब निकोदेमस यीशु मसीह ने जो कहा वो नहीं समझ पाया, तो आप में से कितने लोग जब नए पुनः जन्म के बारे में बात करते हैं, तो कितने लोग समझते हैं, कितने लोग नहीं समझते हैं? In 2 Corinthians chapter 5 and verse 1, it says, "For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house which not made with hands, eternal in the heavens." What is our earthly house? If a married couple invited me to their house, they would say, "John, come over to our house." Our is not the house. Our lives in the house, but our is not the house. Our earthly house is our physical body. और दूसरा कुरिन्थियों 5:1 में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। तो क्या है ये पृथ्वी का भवन? एक एक जो है कपल ने मुझे, एक दंपति ने मुझे अपने घर पे बुलाया और कहा कि जॉन, तुम हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ। तो जो ये हमारा घर हम बोलते हैं, ये जो है एक शारीरिक तौर पे हम बात करते हैं, शारीरिक के बारे में हम बात करते हैं। हमारा जो अनंत काल का घर है वो स्वर्ग में है। In 2 Corinthians chapter 4 and verse 16, it says, "For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day." Who is the outward man? It's our physical body. My outward man is perishing every day. I have gold in my teeth. I have some problem with my knees. My hair is turned white. My outward man is perishing. Who is the inward man? Most say soul or spirit. My inward man is being renewed day by day. और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम ये याद नहीं छोड़ते, यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो बाहरी मनुष्य क्या है? बाहरी मनुष्यत्व है हमारा जो शारीरिक शरीर है, जो दिन पे दिन ढल रहा है। जैसे कि जो मेरे दांत हैं वो देख सकते हैं गोल्डन हो गए हैं, और मेरे घुटनों में समस्या है, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। तो जो हमारा बाहरी तौर का शरीर है वो दिन पे दिन निर्बल होता जा रहा है, घटता जा रहा है। In First Thessalonians chapter 5 and verse 23, it says, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." It says spirit, soul, and body. Notice there's three. It does not say spirit and body. It does not say soul and body. It says spirit, soul, and body. We know what the physical body is, but what's the difference between the soul and the spirit? और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:23 में इस प्रकार से लिखा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तो ये कहता है प्राण, आत्मा और देह के बारे में। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 बातों को लिखा गया है, आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा, प्राण और देह। यहाँ पे खाली प्राण और शरीर नहीं है, आत्मा, प्राण और शरीर है। और हम जानते हैं कि हमारा जो शारीरिक जो शरीर है वो इन सब चीजों से बना है, तो ये हम समझते हैं। लेकिन प्राण में और आत्मा में क्या अंतर है? In Hebrews 4:12, it says, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of joints and marrow,
and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. It says soul, it says spirit, it says joints and marrow. Joints and marrow refer to our physical body. Again, all three are represented: spirit, soul, and body. We know what our physical body is, but what is the difference between our spirit and our soul? Our soul is our mind. Our spirit is our heart or our innermost being. और यहाँ पर हम देखते हैं इस बात को और गहराई से समझने के लिए इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय 12वें में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे कूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि आत्मा, प्राण और शरीर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा से हम प्राण, आत्मा, शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है, तो हमें मालूम है कि शरीर क्या है। तो यहाँ पर प्राण और आत्मा में क्या अंतर है? प्राण जो है हमारा मन है, हमारा मन, हमारा दिमाग हम प्राण को कह सकते हैं, और आत्मा हमारा हृदय जो हमारे अंदर है, जिसमें परमेश्वर वास करता है। जो हमारा हृदय है वो हम कह सकते हैं हमारा आत्मा का हिस्सा है। I can prove that you are a three-part being: spirit, soul, and body. Have you ever had a serious problem of some kind? I had a serious financial problem once. I lost my job and had 2 small children. It affected my physical body. I couldn't sleep. It affected my soul or mind. My mind was running in every direction. I thought if I don't get a job, we'll lose our house and we'll be out in the street. But in my heart, in my spirit, I knew that somehow or some way God would work it out for me, and he did. We are a three-part being: spirit, soul, and body. और हम इन 3 भाग से मिलकर बने हैं, आत्मा, प्राण और देह से मिलकर बने हैं। और ये किस प्रकार से काम करता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार मेरे साथ बहुत ही भयंकर एक परेशानी था, आर्थिक समस्या था, बहुत ही ज्यादा आर्थिक समस्या था। मैंने अपनी नौकरी को खो दिया था, मेरे 2 बच्चे थे, और उससे क्या हुआ, मेरा जो शरीर है वो उससे प्रभावित हुआ। मैं सो नहीं पाता था, और उसके प्रभावित होने से मेरी आत्मा और मेरा मन, मेरा दिमाग दोनों परेशान रहने लगा। मेरा दिमाग चारों तरफ दौड़ता था। मैं सोचता रहता था यदि मुझे नौकरी नहीं मिली तो हम घर को खो देंगे और रोड पे आ जाएंगे। लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा कहीं ना कहीं मैं जानता था कि परमेश्वर मेरे लिए कार्य कर रहा है और इन सबसे बाहर निकालेगा, और उसने निकाला भी। In John chapter 4, in verse 24, it says that God is a spirit, and they who worship him must worship him in spirit and truth. Notice it does not say that God is a great body. It does not say that God is a great mind or soul. It says that God is a spirit. और यहाँ पर हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 24 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, और जितने इसको आराधना करते हैं वो जो है आत्मा में आराधना करें, सच्चाई से आराधना करें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर एक महान शरीर है या परमेश्वर महान मन और प्राण है। परमेश्वर महान आत्मा है। In Genesis 1:26 it says, and God said, let us make man in our image and after our likeness. Us refers to the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. I am made in the image and likeness. If I am made in the image and likeness of God, and God is a spirit, then what am I? A spirit. The real John is a spirit. I have a mind or a soul and a physical body, but the real John is a spirit. और हम देखेंगे उत्पत्ति रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 26 में इस प्रकार से लिखा है, पर आओ, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने ही समानता में अपने जैसे बनाएं। तो उसने हम वहां पर इस्तेमाल किया त्रिएक को, जो दिखाता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो यदि मैं परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बना हुआ हूं तो मैं भी एक आत्मा हूं। परमेश्वर एक आत्मा है, तो मैं क्या हूं? मैं एक आत्मा हूं। मेरे पास मन है, मेरे पास प्राण है, लेकिन मैं जो असल में जो जॉन हूं, मैं एक आत्मा हूं। In Genesis 2, in verses 16 and 17, it says, and the Lord God commanded the man, saying,
of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it. For in that day that you eat thereof, you shall surely die. We know that Adam and Eve sinned. We know that Adam and Eve ate of the fruit that God told them not to. When they ate of the fruit, did their physical body die? No. Did their mind or soul die? No. When they ate of the fruit, their spirit died. Their spirit was separated from God the Spirit. That's what eternal death is. Our spirit is separated from God the Spirit. When you're born again, your spirit comes back into fellowship with God the Spirit. That's what happens when you're born again. Your spirit comes back into fellowship with God the Spirit. और उत्पत्ति 2 के 16 और 17 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दिया कि तुम इस जो बाग है, बगीचे है, इस गार्डन के सारे फलों को खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ है, एक पेड़ है जो अच्छा और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसमें से ना खाना, और तुम उसे खा लोगे, तुम जरूर से मर जाओगे। और हम सब जानते हैं आदम और हव्वा ने पाप किया। आदम और हव्वा ने उस फल को खाया जो परमेश्वर ने उनको खाने के लिए मना किया था। तो क्या उनका शारीरिक जो उनका शरीर था, क्या वो मर गया? क्या उनका प्राण और मन मर गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने उस फल को खाया, उनकी आत्मा मर गई, और वो उनकी आत्मा जो परमेश्वर था, परमेश्वर की ओर से थी, वो अलग हो गई, वो परमेश्वर से अलग हो गए। और यही है अनंत काल का मृत्यु, जब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से अलग हो जाती है। Didn't God give Adam and Eve a good deal? The Garden of Eden was paradise. Adam and Eve had everything they needed. They had a perfect environment or climate. They had fellowship with God. God was their friend. God only asked them not to do one thing, eat of that one tree. I don't know if there's anything special about that tree. और क्या ये एक अच्छा डील परमेश्वर ने आदम और हव्वा को नहीं दिया था? क्योंकि जो अदन की वाटिका थी बहुत ही सुंदर थी, स्वर्ग जैसी थी। आदम और हव्वा के लिए वहां सब कुछ मौजूद था। बहुत ही अच्छा जो भी वहां का मौसम था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। परमेश्वर के साथ उनकी सहभागिता थी, परमेश्वर उनका दोस्त था। लेकिन परमेश्वर ने एक ही चीज तो उनसे कहा था कि उस वृक्ष के फल को नहीं खाना। मैं नहीं जानता उसमें क्या खास बात थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको मना किया था। What was the purpose of the tree? God gave man a choice to obey or not to obey. God did not make us robots. God gave us choice. Now, God gives each one of us a choice. We don't have to be saved. We don't have to put our faith and trust in Jesus and what he did at the cross. It's our choice. It's the most important decision that you ever have to make. It determines your eternal future. It determines whether you will go to heaven or hell. You don't have to go to hell. It's your choice. और क्या उस पेड़ का क्या जो था, क्या उपयोग था, क्यों जरूरी था वो वहां पर, क्या पर्पस था उसका? तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए, वहां पर मनुष्य के लिए एक चुनाव रखा था। या तो परमेश्वर की आज्ञा को माने या ना माने, चुनने का एक अधिकार वहां पर था। क्योंकि परमेश्वर ने रोबोट्स नहीं बनाए थे, परमेश्वर ने हमें चुनने का एक इच्छा दिया था कि हम सही चीजों को चुने। परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का आज भी अक्सर अवसर दिया है, एक अवसर हमारे पास है कि या तो हम बच जाएं, हम अपना विश्वास यीशु मसीह पे और जो कुछ उसने क्रूस पे किया, हम उस पर विश्वास करें और बच जाएं, और या ना बचे, हम परमेश्वर पे विश्वास ना करें, हम यीशु मसीह पे विश्वास ना करें। ये हमारा चुनाव है, हमारी इच्छा है। In Matthew chapter 4, in verse 4, it says, "But he, Jesus, answered and said, It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." Jesus had fasted 40 days, and then the devil came to tempt Jesus. The devil said, "If you're the Son of God, turn these rocks into bread." And Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." Now, Jesus had fasted 40 days. If he did not feed his physical body, he would starve to death just like all of us. और मत्ती रचित सुसमाचार 4 के 4 में इस प्रकार से लिखा है कि उसने उससे कहा, यीशु ने शैतान को उत्तर दिया, इस प्रकार से उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक शब्द से
जीवित रह सकता है। यीशु मसीह ने हम देखते 40 दिन उपवास किया और शैतान वहां पर यीशु मसीह को प्रलोभन देने के लिए आया। तो शैतान ने उस यीशु मसीह से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल ये रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने तभी ये कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से भी जीवित रह सकता है। तो यहाँ देखते हैं यीशु मसीह ने भी उपवास किया, वो शारीरिक रूप से था, शरीर में था और उसने अपने शरीर को 40 दिन तक कुछ नहीं खिलाया। वो बहुत ज्यादा हो सकता है भूखा हो जैसे मैं और आप होते। What man was Jesus speaking of that lives by every word that comes out of the mouth of God? Your spirit. Your spirit lives on the word of God. You feed your physical body food. You feed your soul or mind information. It's like a computer. You put information in and you get information out. You feed your spirit the word of God. और यहाँ पर यीशु मसीह कौन सा भोजन बोल रहा था कि वो जो परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलेंगे उससे जीवित रह सकता है। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो शब्द बोलेगा उससे हमारा शारीरिक व्यक्ति नहीं परंतु आत्मिक व्यक्ति जीवित रहेगा, क्योंकि हम एक आत्मा है और हमारी आत्मा जो चलती है वो परमेश्वर के शब्द से चलती है। आप अपने शरीर को तृप्त करते हैं जो खाने से, भोजन से। आप अपने मन को या अपने बुद्धि को, दिमाग को जो तृप्त करते हैं वो है इंफॉर्मेशन से। जैसे कंप्यूटर होता है उसमें आप डाल सकते हैं, कुछ भी फीड कर सकते हैं, उसी तरह आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु आत्मा जो चलती है वो परमेश्वर के शब्द से चलती है। How many times do you feed your physical body every day? Most people say they eat 3 times a day with snacks in between. What would happen if you fed your physical body only once a week? Your physical body would look like a skeleton and eventually you might die. Many Christians do not read their Bibles. They may go to church once a week and they may hear the word of God, but they seldom read their Bible. What do you think their spirit looks like? What do you think your spirit looks like if you only feed it once a week? You must read your Bible every day to feed your spirit. और सोच के देखिए, यदि आप अपने शरीर को, मैं किसी से पूछूं कि कितनी बार दिन में खाते हैं, तो कई लोगों ने जवाब दिया दिन में 3 बार और स्नैक भी हम ले लेते हैं। तो सोचकर देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को केवल हफ्ते में एक ही बार भोजन दे तो कैसा हो जाएगा? वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो जाएगा और हो सकता है जल्दी मर भी जाए। तो बहुत सारे मसीह ऐसे लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं तभी केवल शब्दों को सुनते हैं। तो अब सोच के देखिए कि उनका आत्मिक व्यक्ति कैसा दिखता होगा अगर वो हफ्ते में एक ही बार बाइबल पढ़ेंगे। तो आप अपना बाइबल रोज पढ़े, आत्मिक रूप से उसे तृप्त करें। In Romans 12:1 it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. It says, you present your body. Who's you? You is not the body, because you is presenting the body. You is your spirit. और रोमियो के पत्री में 12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और वो कहता है अपने शरीर को तुम चढ़ाओ, अपनी आत्मा को हमें परमेश्वर को देना है ताकि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से चले, हमारा शरीर भी परमेश्वर को योग्य हो जाए, परमेश्वर के बलिदान के योग्य हो जाए। वो तब होगा जब हम आत्मिक रूप से चलेंगे, और यहाँ पर तुम का मतलब आत्मिक रूप से होना है। In Romans 12 and verse 2 it says, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. This verse is basically saying, you renew your mind or your soul. Who's you? You is not the mind or the soul, because you is renewing the mind or the soul. You is your spirit. If you feed your spirit will get strong, and your spirit will control your body and your soul or mind. If you do not feed your spirit, your body and soul or mind will control you. You want your spirit
fed by the word of God to control your body and your soul or mind. और 12 के 2 में इस प्रकार से लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पर लिखा है कि इस संसार के सदृश नहीं बनना, परंतु मन के नए हो जाना। तो यहाँ पर तुम क्या हो, आत्मा है, और हमें उस आत्मा को दिन प्रतिदिन, हमें उस मन को नया करना है दिन प्रतिदिन। यदि हम आत्मा को जो है भोजन देते रहेंगे, जो कि परमेश्वर का वचन है, तो हमारा आत्मा मजबूत होकर हमारे शरीर को, हमारे बुद्धि को, हमारे दिमाग को कंट्रोल करेगा। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारा जो दिमाग है वो हमारे शरीर को कंट्रोल करेगा। Hebrews 4:12 says, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." How do we know if a thought that we have is something we made up or from God? God speaks to us in our spirit. We have thoughts in our mind or soul. The spirit and the soul are interconnected. This verse tells us the word of God divides between soul and spirit. The word of God is a discerner of the thoughts and intents of the heart. For our thoughts to be of God, they must line up with the word of God. If our thoughts do not line up with the word of God, they are simply our thoughts. और आइए हम एक और वचन देखते हैं दोबारा से 4 इब्रानी के 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और हम कैसे जाने कि जो विचार है वो परमेश्वर की ओर से है? नहीं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है आत्मा में, और हमारे दिमाग में हम कुछ कुछ बातें सोचते हैं जो सही भी होती है, कई बार गलत भी होती है, और हमारा आत्मा और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये वचन बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है, शब्द है, वो हमारी आत्मा और मन को अलग अलग करता है। कई बार हम आत्मा में तो जानते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन दिमाग में हम सोच रहे होते हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है वो इन दोनों को अलग अलग करता है। तो हमें परमेश्वर के वचनों में रहना है। अगर हम नहीं रहते तो जो हम सोच रहे हैं वो खाली हमारी सोच होगी। यदि हम परमेश्वर के चलाए में चलते हैं तो हम परमेश्वर की सोच में चलेंगे, हमारी जो सोच होगी परमेश्वर की सोच के अनुसार होगी। Now we're going back to the story of Nicodemus. In John chapter 3 and verse 5, it says, "We must be born of the water and of the Spirit." Born of the water refers to our physical birth. Born of the Spirit refers to being born again, born of the Spirit. In verse 7, Jesus told Nicodemus, "You must be born again." Why couldn't Nicodemus understand what Jesus was saying when he talked about being born again? Why can't people understand what we're saying when we talk to them about being born again? और यहाँ पर हम देखते हैं, अभी हम वापस उसी में जाते हैं, और इस प्रकार से लिखा है 5वीं आयत में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 5वीं आयत में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल से जन्म लेना वो हमारे शारीरिक जन्म को दिखाता है, और आत्मा से जन्म लेना वो आत्मा में जन्म लेने को दिखाता है। तो यीशु मसीह ने जब निकोदेमस को कहा कि तुझे जो है दूसरे सिरे से या नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, तो क्यों इस बात को वो नहीं समझा? क्यों निकोदेमस यीशु मसीह की बात को नहीं समझा? क्यों लोग नहीं समझ पाते हैं इस बात को जब हम बोलते हैं दोबारा से जन्म लेना? There are 3 ways people try to reach out to God. Some people try to reach out to God through their physical senses. Our physical senses are what we see, hear, taste, smell, touch, or feel. My physical body is always hungry. If I gave into that physical sense of hunger every time, I'd weigh 1,000 pounds. Do I want to base my eternal future on my physical senses? No. God is a spirit, and we must reach out to God with our spirit. और कुछ लोग परमेश्वर की तरफ शारीरिक रूप से या शारीरिक इंद्रियों से जाना चाहते हैं। हमारी जो शारीरिक इंद्रियां हैं वो देखना, सुनना, सूंघना, छूना
और महसूस करने से लेकर ये 5 चीजों से बनती है। और शारीरिक जो शरीर है, हमारा जो शरीर है वो हमेशा ही भूखा रहता है। अगर मैं अपने शरीर के अनुसार चलूं तो मैं अपना वजन न जाने कितना किलो बढ़ा लूं, क्योंकि शरीर को सब अच्छा लगता है। और ये मेरे जो अब मुझ पे ये निर्भर करता है कि मुझे अपने शरीर को क्या देना है। परमेश्वर आत्मा में है और हमें परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए आत्मा में ही चलना है। Some people try to reach out to God intellectually with their soul or their mind. This is how Nicodemus tried to reach out to God intellectually with his mind. He thought he had God figured out. But Jesus said, Nicodemus, you must be born again. We cannot figure out everything about God. It's impossible. For instance, where did God come from? Do I want to base my eternal future on my intellect? No. God is a spirit, and we must reach out to God with our spirits. और कुछ लोग परमेश्वर तक पहुंचने के लिए दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे निकोदेमस ने किया। उसने सोचा अपने दिमाग से, हो सकता है उसने सोचा होगा कि परमेश्वर के बारे में मैंने सब कुछ जान लिया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा निकोदेमस तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। और हम परमेश्वर के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते, बहुत असंभव है। अ, एक पल के लिए मान लीजिए एक सवाल है कि परमेश्वर किधर से आया, तो हम परमेश्वर के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। तो हम परमेश्वर एक आत्मा है, हमें परमेश्वर के पास आत्मिक तौर पे ही जाना है। हम दिमाग से नहीं जा सकते, हम शरीर के तौर पे नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, हमें परमेश्वर तक आत्मा में ही जाना है। Because God is a spirit, we must reach out to God with our spirit, our heart, or our innermost being. Being born again is when my spirit comes back into fellowship with God the Spirit. To be born again, I must reach out to God with my spirit. और क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, तो हमें उस तक भी आत्मा के द्वारा ही पहुंचना है, अपने हृदय के द्वारा। और जब हम विश्व बचाए गए पूर्ण तरीके से, नए रूप से हमने जन्म लिया, तो हमारी आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा से सहभागिता में आ जाती है। और दोबारा से जन्म लेना मतलब हमें परमेश्वर तक आत्मिक तौर पे ही पहुंचना है। If you're not born again, I hope by now you understand what being born again means. और मैं अब मैं आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है नए तौर पे जन्म लेना। It is our sin that separates us from God the Spirit. और ये जो पाप है, ये हमें परमेश्वर की आत्मा से अलग करता है। To come back into fellowship with God the Spirit, we have to ask Jesus to forgive our sins. और हमें वापस उसकी सहभागिता में आने के लिए हमें यीशु मसीह से बोलना होगा कि हमारे पापों को क्षमा करें। And then we have to put our faith and trust in Jesus and what he did at the cross. और हमें विश्वास करना होगा जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पे किया, और यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। And you will be born again. और इस प्रकार से आप नए तौर पे जन्म ले सकते हैं। You've been physically born, but you must also be spiritually born. You must be born again. आप शरीर के तौर पे हो सकते हैं जन्म ले लिए हो, लेकिन आत्मिक तौर से भी आपको जन्म लेना जरूरी है वो अनंत काल के जीवन को देखने के लिए। If you'd like to be born again, please pray this prayer after me. और यदि आप चाहते हैं कि आप दोबारा से नए जीवन को पाए होना चाहते हैं, तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे पीछे बोलिए। Father, I come to you in the precious name of Jesus. और पिता, मैं बहुमूल्य यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूँ। And Jesus, I ask you to forgive my sins and be the Lord of my life. और यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पापों को माफ करें और मेरे जीवन के प्रभु हो जाएं। I do not put my faith in anything that I do, और मैं उन बातों पर विश्वास नहीं करता जिनको मैं करता हूँ, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. परंतु मैं उस पर विश्वास करता हूँ यीशु, जो आपने मेरे लिए क्रूस पर किया। I ask you for the gift of eternal life. और मैं उस अनंत काल के जीवन के लिए जो आपने मुझे दे दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। I receive it, और मैं विश्वास करता हूँ मैंने इसको पाया, and I thank you for it. और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। Jesus, please be the Lord of my life and take away my sin. और प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन के प्रभु हो जाए और मेरे सारे पापों से मुझे छुटकारा दे।
Amen. Amen. Now, Pastor Persis and I are going to pray for you. But first of all, I've got some exciting news. और मैं और पास्टर प्रसिस हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं, पर मेरे पास आपके लिए आज एक नई सूचना भी है। I just published a book on Amazon, and the name of it is What Does It Mean to Be Born Again? And I believe that you'll be able to get it in India. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक पुस्तक को लिखा है इसी बारे में, किस प्रकार से नए सिरे से जन्म लेना, इस बारे में एक पुस्तक है जो Amazon पे अवेलेबल है और आप इसे पढ़ सकते हैं। इंडिया में आप Amazon पे खोलिए, Amazon से खरीदिए, Amazon पे ये अवेलेबल है। Do you have unsaved sons and daughters, mothers and fathers, family, friends, loved ones? और यदि आपके पास जो है आपके माता पिता बचाए नहीं गए, पति पत्नी बचाए नहीं गए हैं, या बहन भाई नहीं बचाए गए हैं, या रिश्तेदारों में से कोई है तो, And you've shared Jesus with them at every opportunity. और आप उनके साथ बांटना चाहते हैं, यीशु मसीह को कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, You've prayed and prayed and prayed for them, but they're not born again. और आप उनके लिए प्रार्थना किए 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 पर वो बचाए नहीं गए, And you found out that they won't listen to what you say. और आपने देखा कि वो आपकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। Why? क्यों? They've seen your faults and weaknesses. क्योंकि उन्होंने आपके जो कमजोरी है, आपकी गलत बातें हैं, उनको देखा है, तो शायद इसलिए वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। They know you're not perfect. और वो जानते हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, And they want to do their own thing. और वो अपनी हर बातों को खुद ही करना चाहते हैं। And then what did you do? और तब आप क्या करेंगे? You prayed and prayed and prayed that God would send someone into their life to share Jesus with them. और आपने प्रार्थना किया 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 कि परमेश्वर आप उनके जीवन में किसी को भेजें ताकि वो यीशु मसीह को बांट सके। Give this book and send out this book to all your unsaved loved ones. It's a powerful witness for Jesus. और मैं चाहता हूँ कि आप इस किताब को लें और उन सभी को दें जिनसे आप प्रेम करते हैं, चाहते कि वो बचाए जाए, इस किताब को लें और आप उनको दे दें। Use this book as an answer to that prayer. God send someone. और इस पुस्तक को उस उत्तर के रूप में इस्तेमाल करें जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में किसी को भेजे। So the title of the book is What Does It Mean to Be Born Again? और इस किताब का शीर्षक है क्या मतलब है नए सिरे से जन्म लेना, By John L. Vignes. और ये लिखी गई है मेरे द्वारा। मेरा नाम है जॉन एल विग्नेस, Vignes. Vignes, विग्नेस। Amen. Now I'd like to pray with you. और And मैं it- excuse me, Yeah. if you buy that book and read that book, I'd appreciate if you'd put a response on Amazon, give a review. I would appreciate that. That would help us. So now I'd like to pray with you. So Father, और मैं चाहता हूँ कि आप उस बुक को पढ़े, किताब को पढ़े, और अपने जो आपकी अपेक्षाएं हैं और जो कुछ आप जो आपने महसूस किया, आपके फीडबैक्स आप Amazon पे जरूर दे, रिव्यूज दे। वहां पर नीचे स्टार्स होते हैं, आप रेटिंग दे सकते हैं, आप जरूर से दें, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आप उसमें कुछ और ऐड करना चाहते तो वो भी आप वहां पर से जरूर लिखें। All right. Now I'm going to pray for you, and after I get done, Pastor Persis will pray for you.